Okay, good morning students. Today we are going to see practical number 3B, for displaying messages in calendar control, displaying vacation range into calendar control, and whatever selected day in calendar control using style. There will be another thing, we can also calculate the difference between two dates, that is a normal two date calculation. So that also we can calculate because we are going to use date class. So this is going to be more of the coding practicals. So I will just show you the code how we are going to do it. So first thing we have design. We are getting a normal calendar control on the page. Then we will right click on the calendar control and we will set some properties, and few properties we are going to set with the codes. So then we are going to, after that calendar control, we are going to get some labels, label 1, label 2, label 3, label 4, label 5, and there will be one submit button. That's all. Okay, by going to observe, by observing the code, we will come to know what exactly the things are there. Now this code यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, okay, this one is going to, we are not going to code it. Okay, this code is just about a display related thing. So that means day header style, it is again we can do with property, next previous border style, other month day style. So everything can be done in the what we can say, with the properties only. So that I will show you. This code will automatically generate there. Okay. Then once we will click on calendar, there will be one method on day render, calendar one render. Okay, once the date is changed. So there is one event that you have to check. Once we click on calendar date, that will be there. There are two events of calendar. One is day and day render, and everything other thing whatever we are calculating is going to be on button one click. Whatever our button is there. So we can give the caption like this, calendar one dot caption. So whatever you want to give as a caption to your calendar, that you can give. Now, as I said, all other things like styling of the calendar also we can do with the coding also. So that I'm showing you calendar one dot first day of week. So फर्स्ट डे ऑफ वीक आपको संडे दिखाना है या मंडे दिखाना है, आप लोग इस तरीके से ले सकते हो, फर्स्ट डे ऑफ वीक डॉट संडे. देन कैलेंडर वन डॉट नेक्स्ट प्रीवियस फॉर्मेट. जो नेक्स्ट प्रीवियस फॉर्मेट रहता है वो शॉर्ट मंथ रहेगा, शॉर्ट मंथ, या फिर हम लोग देखेंगे वहाँ पे कौन से ऑप्शंस आते हैं. ठीक है. देन कैलेंडर वन डॉट टाइटल फॉर्मेट, देन टाइटल फॉर्मेट मंथ आएगा. देन ये हम लोगों ने कोडिंग के साथ उसके प्रॉपर्टीज सेट कर दिए. देन लेबल वन डॉट टेक्स्ट में हम लिख रहे हैं कि सिलेक्टेड डेट कौन सा है, मतलब यूजर ने आज कौन सा डेट सिलेक्ट किया है. सो दैट इज वेरी सिंपल, लाइक कैलेंडर वन डॉट सिलेक्टेड डेट डॉट डेट टू स्ट्रिंग. सो दिस इज वेयर द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. कैलेंडर वन डॉट सिलेक्टेड डेट डॉट, उसको डेट फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करो. ओके, फिर उसके बाद स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करो. दैट इज गोइंग टू बी अवर लेवल वन टेक्स्ट. देन लेबल टू टेक्स्ट हम लोग दे रहे हैं कैलेंडर वन डॉट टूडेज डेट. तो सिलेक्टेड डेट मतलब यूजर जो भी सिलेक्ट करता है वो, क्या आप मेरे स्क्रीन पे कैलेंडर देख पा रहे हो? एनी वन कैन पुट इन चैट बॉक्स बिकॉज यू कैनॉट अनम्यूट योर सेल्फ राइट नाउ. ओके, सो यस यू आर गोइंग टू सी इट. यस, आप लोगों को दिख रहा है, ये अच्छी बात है. ओके, सो नाउ आई विल अगेन शो इट. सो ओके, नाउ दिस इज द कैलेंडर. ओके, सो यहाँ पे 4 जो है अलग कलर से अलग स्टाइल से दिया है, वो आज का डेट है. ओके, दैट इज नॉट सिलेक्टेड डेट, दैट इज अ कैलेंडर डेट. लेकिन जब मैं ये 6 सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो ये मैंने 6 सिलेक्ट किया है, वो अलग तरीके से दिखा है. तो सिलेक्टेड डेट कैन बी एनी डेट अदर देन टूडेज डेट. मतलब अदर टूडेज डेट ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा तो फिर आपको दूसरा ही सिलेक्ट करना है, और टूडेज डेट ये आएगा. ओके, तो ये होगा सिलेक्टेड डेट, एनी डेट दैट वी आर गोइंग टू सिलेक्ट फ्रॉम द कैलेंडर. सो दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग विथ हियर. और दूसरा आपको बोला था कि ये मंथ का जो नेक्स्ट प्रीवियस फॉर्मेट इसमें तो नहीं दिया, इसमें डायरेक्टली एरोज दिए हैं. तो नेक्स्ट मंथ प्रीवियस मंथ का फॉर्मेट यहाँ पे शॉर्ट मंथ किस तरीके से आता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ. देन लेबल
टू डॉट टेक्स्ट में हमने दिया है कैलेंडर वन डॉट टूडेज डेट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, जो भी आज डेट आएगा उसको शॉर्ट डेट में दिखाएंगे। लेबल थ्री डॉट टेक्स्ट में कुछ फिक्स हम लोगों ने वैल्यू रखा है, बिकॉज वो लेबल थ्री का जो वैल्यू है हम लोग कहीं पे ऐड करने वाले हैं। हाउ? सो देन टू डिस्प्ले द वैकेशन गणपति फेस्टिवल का जो हम लोग लेटेस्ट से यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसको दिखाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा कन्वर्जन चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। जैसे व्हाट वी कैन से हियर, जब गणपति फेस्टिवल होता है तो हम लोग वहाँ पे कुछ दिनों तक वहाँ पे पर्टिकुलर वैकेशन मिलता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले टाइम स्पैन का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। यहाँ से कोड थोड़ा अलग तरीके से शुरू होता है, इसलिए ध्यान रखिए। टाइम स्पैन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, देन न्यू डेट टाइम हमने लिखा है, उसमें यही डेट पास किया है जो ऊपर का लेबल में लिया है, माइनस डेट टाइम नाउ। तो ये डेट टाइम का फॉर्मेट हम लोग क्या कर रहे हैं, डेट डिफरेंस का जो हमारा एक प्रैक्टिकल था वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ले रहे हैं। फिर उसी फॉर्मेट में हम लोग गणपति वैकेशन का लेंगे। ठीक है, तो डेट टाइम डॉट नाउ ये माइनस किया, बिकॉज आप लोग डायरेक्टली डेट माइनस नहीं कर सकते कैलेंडर में से, तो आपको टाइम स्पैन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। एंड दैट टू क्लासेस आर सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, सो यू कैन असाइन ईच अदर। यहाँ पे देखो अलग है, जनरली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो कैसे करते हो, ये टाइम स्पैन डी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप इसको पूरा वैल्यू ये असाइन कर रहे हो। न्यू डेट टाइम, उसमें एक डेट डाला है, माइनस डेट टाइम डॉट नाउ। देन लेबल फोर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डी डॉट डेज टू स्ट्रिंग, ये हम लोग डेट डिफरेंस के लिए किया है ये इतना कोड। ओके, वंस वी विल बी इन द कोड वी विल गेट इट अगेन। देन अगेन टाइम स्पैन का एक और ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें वापस न्यू डेट टाइम डॉट माइनस वही हम लोगों ने किया, लेकिन दूसरा डेट डाला है। ओके, एंड देन लेबल फाइव में हमने डी वन डॉट डेज टू स्ट्रिंग डाला है। तो ये वैकेशन कैलकुलेट किया है यहाँ पे डेट डिफरेंस में, और यहाँ पे नॉर्मल डेट डिफरेंस कैलकुलेट किया। नाउ देर इज अ थिंग, if डिपेंडिंग अपॉन अवर कैलकुलेशन, इफ कैलेंडर वन डॉट सिलेक्टेड डेट जो भी रहेगा उसको शॉर्ट डेट से स्ट्रिंग में करेंगे, अगर वो मैच करती है मेरे लेबल के डेट पे से जो मैंने ऊपर लिए 9/13/2018, हम लोग अभी ये साल के हिसाब से इसको चेंज करेंगे। देन हम वहाँ पे लेबल थ्री का जो टेक्स्ट है ये जो है, इसको चेंज करके क्या लिखने वाले हैं, गणपति फेस्टिवल स्टार्ट, ये 2018 में वो डेट को स्टार्ट हुआ था। ओके, सो 9th मंथ में 13 डेट को। इफ कैलेंडर वन डॉट सिलेक्टेड डेट टू शॉर्ट स्ट्रिंग, अगर ये 23 को मैच करता है, अगर सिलेक्टेड डेट अगर किसी ने स्टार्ट किया तो लेबल थ्री का टेक्स्ट आएगा गणपति फेस्टिवल एंड, मतलब 13 को स्टार्ट हो रहा है, 23 को आफ्टर 10 डेज वो एंड हो रहा है। उस तरीके से हम लेबल पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे। तो अगर एग्जाम में आपको आया तो कोई भी डेट रेंज में आप लोग अपने हिसाब से कोई भी फेस्टिवल स्टार्ट कर सकते हो, एंड कर सकते हो, क्योंकि कोड प्रॉपरली आना चाहिए, डेट का नॉलेज होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं, बिकॉज एवरी ईयर कैलेंडर में ये डेट्स चेंज होती रहती है, तो हमको सारी डेट्स पता होना ज़रूरी नहीं है। नाउ this is all on button click. Now we are going to use the calendar event called as calendar one underscore day render. Then if e dot day dot date dot day, now this is going to be confusing for you. So e is argument of day render event. Okay, so e dot day means calendar dot day, then this e dot day represents calendar ka day. Okay, then we are converting into date फॉर्मेट डॉट डेट, डे मीन्स फिर आपका डेट कन्वर्ट होने के बाद उसमें से कौन सा डे है, अगर वो इक्वल्स टू 5 है एंड सेम इक्वल्स टू 9 है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज हम लोगों को क्या करना है, एक डेट रेंज जितना है वो वैकेशन दिखाना है। ओके, पूरा का पूरा वैकेशन वहाँ पे हाईलाइट करके कैलेंडर में दिखाना है, सो इट इज नॉट सो इजी। ओके, सो हम लोगों को चेक कर रहे हैं कि अगर 5 तारीख से 9 तारीख तक हमको हाईलाइट करना है तो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। हम लोगों ने 5 और वो वहाँ पे वो लिया है। ओके, ये ऊपर का पेज का है, देन उसके नीचे
ई डॉट cell. E dot cell means calendar dot cell dot back color. E argument of day render event है, जो day render event है represent करता है calendar को. So E dot cell, this is not a table cell, calendar का cell dot back color yellow कर दिया, system dot drawing dot color dot color, and then label से और एक नया new label लिया, because this label we are going to add within the calendar. कैलेंडर के नीचे जैसे 15 अगस्त के नीचे इंडिपेंडेंस डे लिखा रहता है, तो वो कैलेंडर के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए. बाहर का लेबल पे तो हम लोग कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं. तो कैलेंडर में अगर आपको लेबल ऐड करना है तो आपका कोडिंग लॉजिक ये रहेगा. फिर उसमें आपने लिखा 5 सितंबर को टीचर्स डे लिखा है. देन ई डॉट सेल डॉट कंट्रोल्स डॉट ऐड. नाउ दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलेंडर कंट्रोल टेबुलर कंट्रोल है, लेकिन वो अपना एक खुद का सेपरेट कंट्रोल है. ओके, दैट रिप्रेजेंट अ सेपरेट क्लास. उसका एक खुद का एक स्ट्रक्चर है. तो उसके अंदर अगर मुझे लेबल ऐड करना है टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, तो आई हैव टू यूज ई डॉट सेल डॉट, दैट इज ऑल्सो इन डे रेंडर इवेंट, ई डॉट सेल डॉट कंट्रोल्स डॉट ऐड LBL. तो ये लेबल ऐड होगा कैलेंडर के अंदर. कौन सी डेट को होगा, 5 और 9 को, या फिर मतलब 5th डे होना चाहिए और मंथ होना चाहिए. आई थिंक यहाँ पे अगर आप देख ले तो यहाँ पे डे होना चाहिए 5th और मंथ होना चाहिए 9th, दैट इज सितंबर, दैट इज द टीचर्स डे. ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा. ओके, सो देन अगर आप लोगों को कैलेंडर के अंदर कुछ इमेज भी ऐड करनी है तो दैट आल्सो यू कैन ऐड. और ऑब्वियसली यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो भी इमेजेस रहेंगी वो काफ़ी बड़े रहेंगी. तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैलेंडर एक छोटा एंटिटी है. अगर आपको फुल पेज भी डिस्प्ले करना है तो भी इमेज का साइज छोटा रखना पड़ेगा, जो आप कैलेंडर के डेट के साथ दिखाना चाहते हो. लाइक गणपति फेस्टिवल है तो गणपति का इमेज दिखाना चाहते हो, लाइक दैट, उस पर्टिकुलर डेट पे. सो यहाँ पे इमेज का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू इमेज. फिर जी वन बनाया ऑब्जेक्ट, जीमेन डॉट इमेज URL, जो हम लोग वो प्रोजेक्ट में डाल के रखेंगे हमारा td.jpg. और उसका हम लोगों ने हाइट विड्थ एकदम कम कम रखा है 2020. देन ई डॉट सेल्स डॉट कंट्रोल डॉट ऐड G1. ओके, देन सेम कोडिंग किया लेकिन थोड़ा सा अलग चीज किया है. इफ ई डॉट डेट डॉट डे, अगर डे 13 है मतलब डेट 13 है और मंथ 9 है, 13 सितंबर रहेगा, तो हम लोगों ने किया कैलेंडर वन डॉट सिलेक्टेड डेट इक्वल टू न्यू डेट जो भी रहेगा 12th. देन कैलेंडर वन डॉट, यहाँ पे 12th इसलिए लिया है कि एक दिन इसको छोड़ के आगे से हाईलाइट करना है, इसलिए यहाँ पे 12th लिया है. ओके, हम लोग हाईलाइट कहाँ से करेंगे, 13 से, लेकिन देते वक्त हमको सिलेक्टेड डेट कौन सा रहना रखना पड़ेगा, 12. तो फिर उसके आगे का पार्ट अलग से सिलेक्ट होगा. calendar one dot selected dates. Then this is the important method, select range. So selected date हम लोगों ने दिया यहाँ पे 12. ओके, 12 सितंबर के बाद का. एंड देन सेकंड पैरामीटर आएगा कहाँ तक, कैलेंडर वन डॉट सिलेक्टेड डेट एट डेज 10. तो ये क्या करेगा, सिलेक्ट रेंज क्या करेगा, यहाँ से लेकर ये जो डेट है उसको लेकर अगला 10 दिन तक वो सिलेक्ट करेगा. उसमें फिर से हमने एक नया लेबल का ऑब्जेक्ट बनाया. फिर उसको गणपति लिखा है, कुछ भी गणपति फेस्टिवल है या कुछ लिख सकते हो. एंड देन ई डॉट सेल डॉट कंट्रोल डॉट ऐड लेबल 1. so this might not be, you might not be able to understand this immediately, but we will see through the code. बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, क्लियर है. सिर्फ सबको एम्प्टी किया है, और कैलेंडर को अगर रिसेट करना है तो कैलेंडर वन डॉट सिलेक्टेड डेट्स क्लियर. So let us start with the practical project here. For you, I already created the empty project, calendar practical. Okay, and one web page where we are going to drag the calendar control. So I'm dragging the calendar control here. Okay, and below that I'm going to drag some labels. Okay, then I think we will require 4-5 labels. I'll take some extra, no issue. Then one by one हम लोग कोड करेंगे. Okay, so this is the one. And then after that I'm going to add कोड के अंदर भी हमने कुछ लेबल देखे हैं. ओके,
कोड के अंदर भी हम लोगों ने कुछ लेबल देखे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके लेबल है, तो वो लेबल और ये लेबल अलग है, उनको कोई आईडी वाईडी नहीं चाहिए, बिकॉज वो हम कैलेंडर कंट्रोल के सेल के अंदर ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रिसेट बटन आई विल टेक ओनली वन बटन। ओके, रिजल्ट करके इसका नाम रख देते हैं। ओके, रिजल्ट। ओके, दिस इज द रिजल्ट। नाउ कैलेंडर को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। नाउ यू कैन सी हियर सोर्स कोड में, अगर आप दिखाओगे सोर्स कोड में मैं यहाँ पे हूँ, उसके बाद में सिर्फ लेबल ऐड किए और बटन ऐड किया। कैलेंडर कंट्रोल का कोड कितना है, यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक। ओके, बिकॉज वी हैव नॉट एडेड एनी प्रॉपर्टी हियर। ओके, नाउ वी विल ऐड द प्रॉपर्टीज। थोड़ा डिजाइन करते हैं इसको। प्रॉपर्टीज में राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ। लेट अस स्टार्ट विद गोइंग टू बैक कलर चाहिए कैलेंडर को, क्लिक करोगे तो कलर पैलेट आ जाएगा आपको। कैलेंडर को कोई ब्लैक बैक कलर चाहिए, वो कैलेंडर को वाइट है तो वाइट देके कुछ मतलब नहीं है, थोड़ा सा अलग कलर देते हैं। ठीक है, बॉर्डर कलर चाहिए, यहाँ पे हम लोग बॉर्डर कलर देंगे। ओके, नो इशू। देन बॉर्डर स्टाइल अगर आपको सेट करना है, डैश रखेंगे, डबल रखेंगे, ठीक है, डबल बॉर्डर सेट किए हैं। देन कैप्शन हम लोग कोड के थ्रू भी रख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो कैप्शन। लेट अस से कैलेंडर प्रैक्ट, वहाँ पे कोड में भी हमने लिखा है, बट यहाँ पे हम कैलेंडर प्रैक्टिस के कोड में कुछ अलग लिखेंगे। कैप्शन देखो यहाँ पे ऊपर आ गया। जब मैं कोड में कुछ लिखूंगा तो वो बटन क्लिक पे चेंज होगा। ओके, डन। देन सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग अगर आपने लिखा है यहाँ पे तो 2 रखा है, तो वहाँ पे डिफरेंस आपको सेल्स में दिखेगा। ओके, देन we are just talking about designing day header style. Okay, we can check here day header style का कलर हम लोग सेट कर सकते हैं, रेड में गया है। ओके, बॉर्डर कलर अगर डे हेडर को देना है आप लोगों को तो कुछ अलग कलर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉर्डर स्टाइल भी अगर आपको सिलेक्ट करना है तो वो भी आप लोगों का सिलेक्ट होगा। ओके, बॉर्डर विड्थ देना है तो वो ज़्यादा हो जाएगा। फॉन्ट किस तरीके से चाहिए, फॉन्ट भी आप लोग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बोल्ड नहीं चाहिए आप लोगों को, सो यू कैन डू इट। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू स्टाइल एंड डिज़ाइन, ये आपका ऊपर है। देन डे स्टाइल में आपको डे स्टाइल कैसे चाहिए, उसका बैक कलर कौन सा चाहिए, येलो ले लेते हैं। ओके, देन उसका कोई बॉर्डर चाहिए क्या, ज़रूरी रहेगा तो आप लोग अपने हिसाब से अपना चॉइस से डिज़ाइनिंग करो, या फिर कोई सी एस एस क्लास आपको अप्लाई करना है तो वो करोगे, देन यू हैव टू ऐड सी एस एस। ओके, फिर इसका फॉन्ट कैसे चाहिए वो एक है। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट प्रीवियस स्टाइल। ये जो है ना एरो है कैलेंडर पे यहाँ पे, वो नेक्स्ट प्रीवियस स्टाइल। तो इसको बैक कलर लेते हैं। इसका भी मैं रेड रखता हूँ। ओके, आप देख सकते हो नेक्स्ट प्रीवियस जो नवंबर के लेफ्ट और राइट साइड में आया था, उसका बॉर्डर कलर कुछ रखना है तो बॉर्डर कलर रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अदर मंथ डे स्टाइल, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अदर मंथ डे स्टाइल। तो अदर प्रीवियस मंथ डे स्टाइल में यहाँ पे M% LT लिखा है। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग क्या क्या ले सकते हो वहाँ पे कैलेंडर में जाकर देखना पड़ेगा। तो वी विल कीप इट एज इट इज LT एज अ सिंबल। ओके, लाइक दैट वी कैन सिलेक्ट द डेट। वो सिलेक्टेड डेट किस तरीके से दिखना चाहिए या फिर कौन सा होना चाहिए, वो एज इट इज कैलेंडर को डिसाइडेड करते हैं। देन सिलेक्टेड डे स्टाइल, अगर इसका स्टाइल हम लोगों को करना है, जो भी डेट सिलेक्ट करते हैं, लेटर से हम उसको ग्रीन में दिखाते हैं, तो जो भी डेट सिलेक्ट होगा उसका बॉर्डर भी हम लोग सेट करते हैं ताकि अलग से दिखे प्रैक्टिकल में कुछ हो रहा है करके। यहाँ पे सिलेक्टेड डे कब होगा, जब यूजर प्रोग्राम रन होने के बाद सिलेक्ट करेगा तो ये स्टाइल आएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग लेंगे नेक्स्ट प्रीवियस मंथ डिस्प्ले है, ये ट्रू रखना है। ग्रिड लाइन दिखाना है या नहीं है। सिलेक्टर का स्टाइल ऑल्सो यू कैन सिलेक्ट, टाइटल का स्टाइल ऑल्सो यू कैन सिलेक्ट। ऑलरेडी वी हैव डन एनीथिंग, बट एक टूडेज डेट का स्टाइल सेट कर लेते हैं। जो आज का दिन रहेगा उसका बैकग्राउंड कलर लेटर से हम लोग ग्रीन लिया है, येलो लिया है, तो थोड़ा सा ब्लूइश में जाते हैं।
ओके, ये देखो 4 आज का डेट है तो उस तरीके से आ गया वहाँ पे। लेट अस कंटिन्यू विथ अनदर ऑप्शन। देन टूल टिप अगर आपको देना है अनदर थिंग्स। ओके, तो हम लोगों ने काफ़ी स्टाइल चेंज किया है। जो कोड मैंने आपको दिखाया था, नाउ वी विल अगेन गो टू सोर्स कोड एंड चेक कि क्या चेंजेस हुए। दिस यू कैन सी हियर, जितने भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज सेट किए हैं वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। गॉट माय पॉइंट? डे हेडर स्टाइल, डे स्टाइल, बैक कलर, नेक्स्ट प्रीवियस स्टाइल, okay, selected date style, everything is there. So now we will move to our code. तो पहला हम लोग करेंगे बटन क्लिक वाला कोड। लेबल्स आर रेडी। ओके, आप लोगों को सिर्फ याद रखना पड़ेगा कि किसके लिए क्या है। सो आई एम डबल क्लिकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर बटन एंड वी आर अंडर बटन 1 क्लिक। To save the time, we will continue the same practical in next lecture also to explain you another event. But to save the time, I'll just get the button ka code copied into the particular thing. So this is button ka code completely. Okay, just give me time. I'll just copy the code. Okay, let us see कितना कॉपी होता है, फिर बाकी का बाद में ऐड करेंगे। ओके, कहाँ तक आया है कोड? कोड आया है लेवल 5 तक का आया है। लेवल 5 हमारे पास है ऑलरेडी। ओके, एंड देन दिस 2 ifs आर remaining. Okay, done. So what we will do, जस्ट ये क्या होगा, वो काफ़ी पीछे जाएगा। तो हम लोग डेट को 2020 करते हैं ताकि जल्दी दिखना चाहिए करके। जहाँ पे भी हम लोगों का डेट है तो 2020 में से करते हैं। डेट भले ही आगे पीछे हुआ तो चलेगा। तो वेयर देयर इज 18, आई एम जस्ट मेकिंग इट 20 सो दैट हमको कैलेंडर को ज़्यादा आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा। तो होप सो सारे 2018 हमने रिमूव किए हैं। कैलेंडर का इवेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बटन 1 क्लिक पे हमारा कैलेंडर का ऑप्शन कैप्शन चेंज होना चाहिए। ठीक है, कैलेंडर का अभी करंट डेट हमारा मंडे डिस्प्ले देख रहा है पहले, तो वो संडे दिखना चाहिए। व्हाट माय पॉइंट? फर्स्ट डे ऑफ वीक संडे दिखना चाहिए। अभी मंडे दिख रहा है, डिज़ाइन के हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे मंडे है, वो संडे होना चाहिए। देन जो एरो है हमारा नेक्स्ट प्रीवियस फॉर्मेट है वो एम्परसेंड एल टी, मतलब वो स्मॉल सिंबल है ग्रेटर देन एंड लेस देन का, उसकी जगह पे मंथ का नाम आना चाहिए। कहाँ पे? ये जो एरोज है यहाँ पे नवंबर का इधर, और ये शॉर्ट एरोज है उसकी जगह पे मंथ का नाम आना चाहिए। ठीक है, देन टाइटल फॉर्मेट में भी मंथ देंगे। देन सिलेक्टेड डेट और ये सारी चीज़ें वहाँ पे आनी चाहिए लेबल्स में। और डेट डिफरेंस कैलकुलेट होना चाहिए। और गणपति फेस्टिवल कब स्टार्ट हो रहा है, गणपति फेस्टिवल कब एंड हो रहा है, सिलेक्टेड डेट पे हम लोगों को लेबल पे मैसेज मिलना चाहिए। सो जो 50% पार्ट है जो ऑन डे रेंडर इवेंट का, वो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में देखेंगे। वी आर गोइंग टू जस्ट चेक दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल बाय एग्जीक्यूटिंग द कोड। होप सो एटलीस्ट 50% कोडिंग आप लोगों ने ग्रास्प कर लिया है, एंड देन आई विल आंसर योर क्वेश्चंस to clarify the other part. You can see the coding what we have done. This is we have done with particular property setting. Okay, if I am selecting a date, you can check selecting date के लिए मैंने अलग से कलर कॉम्बिनेशन बोला था कि सिलेक्टेड डेट ग्रीन होना चाहिए, उसके हिसाब से आया। सिलेक्टेड डेट ब्लू होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या चेंजेस होना चाहिए। लेबल पे वैल्यूज आना चाहिए कैलकुलेट करके, और यहाँ पे मंथ आना चाहिए नेक्स्ट प्रीवियस मंथ, यहाँ पे मंथ आना चाहिए, कैलेंडर का कैप्शन चेंज होना चाहिए, डेट डिफरेंस कैलकुलेट होना चाहिए। जस्ट वी विल कैलकुलेट दैट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन का कोड हमारा क्या है, लेबल 1 पे हमारा क्या है, सिलेक्टेड डेट को शॉर्ट टू स्ट्रिंग करना है, फिर टूडेज डेट लेना है, फिर
लेवल 3 का टेक्स्ट ऑलरेडी वो डे रेंडर पे हम लोग चेंज करने वाले हैं इसके लिए। ओके, तो ये जो कैलकुलेशन है ये -52 दिखा रहा है, तो दैट मीन्स हमारा कोडिंग में कहीं तो भी चेंजेस है। ये 56 बता रहा है बिकॉज हम लोगों ने करंट डेट से लिया था, वो सितंबर में प्रैक्टिकल होना चाहिए था, वो दिसंबर में हो रहा है। ओके, क्यों ये आ रहा है 52 -52 और ये 56 बिकॉज उस आज का मंथ है हमारा नवंबर। ओके, और वो होना चाहिए था हमारा दिसंबर, वो पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, सो वी विल चेंज द मंथ। यहाँ पे ये 9 to 12 दिया है तो उतना आएगा ही। सो व्हाट वी विल डू हियर, अच्छा वो गणपति वैकेशन में या फिर अगर 12th मंथ में कितना टाइम रहेगा वो है, तो हम लोग यहाँ पे मंथ चेंज करते तो डिफरेंस भी चेंज होगा। यहाँ पे भी मैं 12 करता हूँ और यहाँ पे नो 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 नो, इंस्टेड ऑफ दिस ये 13 ऐसे ही रहेगा। ये मंथ है, ये मुझे चेंज करना पड़ेगा। 12 13 से अगर मैंने लिया, सॉरी यहाँ पे 13 में अगर 12 आएगा और यहाँ पे मंथ मुझे 12 देना है। ओके, डेट यहाँ पे भी 12, हाँ दिस इज ओके नाउ। ओके, तो लेवल 1 का भी टेक्स्ट मुझे यहाँ पे 12 करना चाहिए। ओके, एंड देन जस्ट आई विल रिफ्रेश द पेज। ओके, नाउ यू कैन चेक कितना टाइम डेट को है, डेट डिफरेंस कितना आया वो भी आया है। ओके, और यहाँ पे भी आया है बिकॉज आई थिंक इफ में हम लोगों ने वापस कुछ छोड़ दिया है। 2020 13 2020। ओके, so hopefully few of the code you have understood. You can observe the output here. Okay, we are stopping for the day here, and we will cover the next day render part in next lecture. Thank you so much for student patiently listening the practical session.